Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we are going to discuss about very important topic, that is metagenesis or polymorphism in Obelia. This is very important topic of kingdom Animalia, phylum Coelenterata or Cnidaria. In previous video lecture, you have seen the basic important features of phylum Coelenterata. Why called Cnidaria, why called Coelenterata in part first video. And what are the other important features of phylum Coelenterata in second part, in second features. This is another important features of the Coelenterata, that is metagenesis or polymorphism. As you all know, in previous video lecture I have described you in some phases of Coelenterata stage are actually, some coelentrates are actually motile and some stages are non-motile. Motile stage of coelentrates are known as the medusa and the non-motile or sessile stage are known as polyp, no doubt. But some other species of coelentrates like Obelia, I have mentioned over here Obelia, this will be the Obelia. In some members of coelentrates like Obelia, motile and sessile stage comes after another. You mean to say the alternation of generation. That will be the name of alternation of generation. Not only metagenesis, not only polymorphism, this will be the alternation of generation. Alternation of generation. So be with the video lecture to know about very important topic, that is alternation of generation, metagenesis or polymorphism in Obelia. This is all about matter of class 11th, subject biology, chapter 4 animal kingdom, phylum Coelenterata, topic the metagenesis. So let back in online class and see whatever the important steps by which the Obelia form motile and sessile stage in their lifespan. मेटाजेनेसिस और पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? तो एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन द पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस इन Coelenterata। तो Coelenterata का एक मेंबर है ओबेलिया, तो इसी का एग्जांपल लेकर के हम लोग Coelenterata का पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं, हाउ डू ओबेलिया परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ मेटाजेनेसिस एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, एंड मॉर्फिज्म, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी एंड मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म मीन्स द मॉर्फोलॉजी, इट मीन्स अपीयरेंस ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स। मॉर्फिज्म मीन्स बॉडी अपीयरेंस, बॉडी appearance. Body appearance means some are rectangular, some are circular, some are black, some are white, some are thin, some are thick, some are fat, some are tall, some are dwarf. It means what are the external features of living being, that is known as morphology. External features of living being, that is known as morphology, and that phenomenon is known as morphism. So when the living being show different morphology at different life span, that is the way of definition of polymorphism, that is called polymorphism. जैसे कोई एनिमल है जो ऐसे है, कोई एनिमल है ऐसे है, ये अपना बेबी बर्थ किया, वो ऐसे हो गया, ये क्या है, बेबी, ये क्या है, पेरेंट। ठीक है, बेबी बर्थ किया ऐसे हुआ, बेबी थोड़ा सा ग्रो हुआ तो ऐसे हो गया, और जब बड़ा हुआ तो अपने फादर की तरह से हो गया। तो ये हमको क्या मिला, स्टार्टिंग में पेरेंट ऐसे है, बेबी उसका सर्कुलर है, उसका जो है जो मैच्योर स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है, या उसको हम लोग बोलेंगे जो यंग स्टेज है, यंग स्टेज स्क्वायर है। ये कैसा है, यंग स्टेज।
ये स्क्वायर है, और एडल्ट क्या है, अपने पेरेंट की तरह से। फिर ये अगले स्टेज में क्या होगा, बेबी सर्कुलर पैदा करेगा, यंग जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर अपने एडल्ट क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट की तरफ हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन से दैट different morphological features appears at different stages of the living being. This means the different morphology and their appearance is known as polymorphism. बातें क्लियर हो गई। पॉलीमॉर्फिज्म का अभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, यहां से क्लियर हुआ कि नहीं। पॉलीमॉर्फिज्म इज when different morphological features appears at different stage of living being, that is known as polymorphism. क्लियर हो गया। तो इसमें ओबेलिया के स्टेज में, वो ओबेलिया के लाइफ स्पेन में, देखो अभी तुम्हारा मैसेज आया होगा, हो सकता है कि कट जाए, तो कटेगा तो तुरंत रिटर्न बैक आ जाना। इस कॉन्सेप्ट को आज ही मैं क्लियर कर दूंगा। ओबेलिया के लाइफ स्पेन में क्या होता है, कुछ स्टेज सेसाइल होगा, उसका स्ट्रक्चर दूसरे तरह से होगा, कुछ स्टेज मोटाइल होगा, उसका स्टेज दूसरे तरह से होगा। सो ओबेलिया क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। कैसे शो करेगा, लिसन, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो ये बातें लिख लेना कॉपी में। इसका डिफिनीशन पॉलीमॉर्फिज्म का डिफिनीशन सब लोग अपने लैंग्वेज में लिख देंगे। दिस इज फिनोमिनन इन विच ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लिविंग बीइंग, और phenomenon in which organism show different morphology at different stages of living being, that is called as polymorphism. So example of polymorphism, obelia. Listen, obelia show polyp and medusa both stage. Obelia show polyp, it means sessile polyp, and motile medusa, बोथ स्टेजेस इन द सेम लाइफ स्पेन। ठीक है, अब पॉलिप से मेड्यूसा कैसे बनता है, लिसन। पॉलिप अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिक है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उससे बनने वाले इंडिविजुअल मेड्यूसा यानी कि मोटाइल हो जाएंगे। क्लियर है। अगर मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो उससे बनने वाले इंडिविजुअल कैसे हो जाएंगे, पॉलिप हो जाएंगे। इट मीन्स इट इज क्लियर दैट इन सिलेंट्रेटा फाइलम, इन ओबेलिया, बोथ asexual and sexual reproduction are found. Polyp by means of asexual reproduction form medusa, and medusa by means of sexual reproduction form polyp. This is the way of formation of polyp and medusa in the life span of obelia. क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। ये भी पॉइंट में मेंशन कर देना आपने। पॉलिप बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म मेड्यूसा, एंड मेड्यूसा बाय मींस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म पॉलिप। हो जाए तो बता देना भाई। हो गया। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे ओबेलिया पॉलिप और मेड्यूसा सेक्सुअल एसेक्सुअल के थ्रू बनाता है। ध्यान से सुनो। पहले तो मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। हेडिंग तुमको डालना है, स्ट्रक्चर ऑफ सम पॉलिप सिलेंट्रेट। ओबेलिया की बात मैं पेंडिंग में रख रहा हूं। अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिप जब देखोगे किसी भी सिलेंट्रेट का ऐसे होगा। दिस इज द पॉलिप ऑफ हाइड्रा, and this is the polyp of obelia, and this is the polyp of adamsia। ठीक है, पॉलिप स्टेज कैसा होता है, मोटाइल होता है। दिस स्टेज इज नोन एज द स्टोलन, जिससे वो चिपका रहता है उसको स्टोलन बोलते हैं। जिस रॉक पे, जिस सरफेस पे चिपका रहेगा उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं, सबस्ट्रेटम। क्लियर है। तो ये पॉलिप स्टेज हो गया, जल्दी से बना लो। मेडूसा का मैं स्ट्रक्चर यहां पे नीचे बना दे रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ मेडूसा। अब मेडूसा कैसे बनेगा, डिस्क शेप होता है, डिस्क शेप। ठीक है, ध्यान से सब लोग सुनेंगे, ये डिस्क शेप होगा।
इसमें विंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होंगे, ठीक है, विंग लाइक, और इसमें बनेगा यहाँ पे गोनड, दिस विल बी द गोनड। गोनड मीन्स इट इज द टेस्टिस और ओवरी, दिस में बी द टेस्टिस or ovary. If this will be the male, then gonad will be testis, and this will be female, then gonad will be ovary. Okay, so this is the gonad and this is the tentacles. This represent the tentacles. Tentacles इसमें भी होंगे, ये क्या इसका tentacles, ठीक है। So tentacles are common in coelentrates, whether they are motile, the medusa or polyp sessile, ठीक है, टेंटिकल्स। और इसको बोलेंगे आर्म, इसको क्या बोलेंगे, आर्म, ओरल आर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेड्यूसा। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मेड्यूसा, इट मीन्स दिस इज द मेड्यूसा ऑफ ऑरेलिया, दिस इज मेड्यूसा ऑफ ऑरेलिया, और दिस इज मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया। अगर इसको ऑरेलिया लिखोगे तो डायरेक्ट मेड्यूसा नहीं लिखना है, अगर ओबेलिया के केस में लिखोगे तो बोलेंगे हम लोग दिस इज द मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया का एक स्टेज है मेड्यूसा, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खुद मोटाइल होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेलिया और जेलीफिश। तो ऑरेलिया क्या है, ऑरेलिया एक मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, मेड्यूसा ये ओबेलिया पॉलिप भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने पॉलिप ऑफ ओबेलिया लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इस स्टेज में यहाँ पे मेड्यूसा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन ऑफ मेड्यूसा समझा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना, बाद में हो जाए तो बता देना। हो गया, हो गया कि नहीं, हो गया, जल्दी बोलो भाई, हो जाए तो बताना। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई पढ़ना थोड़ा नहीं, बना लेना बाद में। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात करते, इसी के थ्रू वो मूव करता है, और ये चिपका रहता है इसके अपने स्टोलन के थ्रू, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आपको जो मेटाजेनेसिस है पॉलीमॉर्फिज्म ओबेलिया का, वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। मेटाजेनेसिस ऑफ ओबेलिया, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोगों को, ठीक है। लिसन, ये है पॉलिप स्टेज ऑफ ओबेलिया, ठीक है, ये क्या है, पॉलिप ऑफ ओबेलिया, पॉलिप ऑफ ओबेलिया चिपका हुआ है अपने सबस्ट्रेटम पे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मीन्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, this produce a bud, this bud is known as medusa bud, medusa bud, this polyp produce medusa bud in which many medusa form, this is the several medusae, medusae is the plural of medusa, so inside the medusa bud several medusae form. After maturity, when the bud get burst, then many medusae get released out. This actually in form of larval stage. This larva is known as the Ephyra larva. Ephyra larva. You mean to say the baby of medusa will be Ephyra. So this is the Ephyra larva. This is free swimming larva. Free swimming. This is free swimming larva. It means this can free. This can move place to place. Later, this form the medusa, mature medusa, like Obelia or Aurelia. This is the mature form of this baby. ये बड़ा होकर के क्या बनेगा, मैच्योर फॉर्म बेबी का बनेगा, जिसको अभी तुमने बनाया था, ठीक है, जिसको अभी तुमने बनाया था, जैसे ओरेलिया बनता है वैसे
इसके भी मेड्यूसा, मतलब इफाइरा बड़ा होकर के क्या बनाएगा, मेड्यूसा। दिस इज द मेड्यूसा। सम ऑफ देम विल बी मेल मेड्यूसा एंड सम ऑफ देम विल बी द फीमेल मेड्यूसा, ठीक है। कुछ इसमें से मेल मेड्यूसा होंगे, कुछ फीमेल मेड्यूसा होंगे, ठीक है। तो ये मेल मान लो और ये फीमेल मान लो, ठीक। जो मेल होगा उसका गोनड यहाँ पे क्या होगा, टेस्टिस होगा कि ओवरी होगा, हमको बताओ भाई। जो मेल यहाँ पे होगा उसका जो गोनड होगा वो क्या होगा, टेस्टिस की ओवरी, टेस्ट ट्यूब, टेस्टिस ना, testis. Then there will be testis and there will be ovary. It means this produce sperm and this produce egg cell. This is the sperm produced by the male medusa and this is the egg or ova produced by the female medusa. Both fuse together to form zygote, and zygote later form embryo. और ये एम्ब्रियो बाद में एक ऐसे फ्री स्विमिंग फिर लार्वा बनाएगा। ये पहले जाइगोट बनाएगा, फिर एम्ब्रियो बनाएगा, फिर ये फ्री स्विमिंग, ध्यान से सुनना है, ये फिर से फ्री स्विमिंग इस तरह से फिर से लार्वा बनाएगा। इसको हम लोग प्लेनुला बोलेंगे, बड़े प्यार से क्या बोलेंगे, प्लेनुला, ठीक है। ये प्लेनुला लार्वा है। और इससे पहले कौन सा लार्वा बना था, इफाइरा लार्वा। इफाइरा बड़ा होकर के क्या बना, मेडूसा बना। मेडूसा अपने स्पर्म और एग को फ्यूज करके जाइगोट बनाया। जाइगोट से जो न्यू बेबी बना वो कैसा था, वो फ्री स्विमिंग था, ठीक है। और उसको बोलेंगे प्लेनुला, PLANNULA, प्लेनुला। ये प्लेनुला इसके थ्रू, अपने सिलिया के थ्रू तैरता रहेगा, फिर ये किसी सबस्ट्रेटम पे जाकर के चिपक जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है। स्टिक ऑन सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम पे जाके चिपक जाएगा और बड़ा होकर के क्या बनाएगा, पॉलिप। क्लियर है बातें यहां तक। पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा बड, दिस मेड्यूसा बड फॉर्म सेवरल इफाइरा लार्वा, that is the baby form of medusa. Many ephyra larvae mature to form the male and female medusa. Male medusa produce sperm, female medusa produce egg cell, both fuse to form zygote. This zygote form embryo form planula larva. Planula later stick on the substratum to grow and further become sessile polyp of obelia. बातें क्लियर हो गई कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं अभी। चलो, तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस किया, रीमेन फीचर्स ऑफ सिलेंट्रेटा एंड लाइफ साइकिल ऑफ सम सिलेंट्रेट्स। अब हम कल फिर पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा वाले ही पोर्शन में रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल, ठीक है। टिल देन क्लोज द वीडियो एंड शट द नेट ऑफ। क्लियर है ना।